Welcome to DSCJ's Home Classes, a digital initiative by Director School Education Jammu. Hello, I am Anjil Thakur, Senior Lecturer Botany, School Education Department. So I am here with a new video. Let us start. This video is prepared to help students to clear their concepts and doubts, especially during the COVID-19 lockdown. The present session is part 6 of the ongoing series of lectures on Unit Genetics, chapter Principles of Inheritance and Variation, and the topic is the chromosomal theory of inheritance. थोड़ी सी historical background. Till the end of 19th century, scientists had doubts about the physical existence of Mendel's factors, and hence the laws of inheritance were not widely accepted. But in the beginning of 20th century, due to the advancement in microscopy and related techniques, cytologists were able to figure out structures that duplicate and divide during cell division. Also, by that time, these structures, यानी कि जो chromosomes वगैरह, and the process of mitosis and meiosis were well understood. और उसी समय मेंडल्स का जो लॉन्ग इग्नोर्ड वर्क था उसको फिर से इंपॉर्टेंस मिल रही थी और मेंडल्स के लॉज की रीडिस्कवरी होने जा रही थी. Two scientists, an American cytologist and physician Walter Sutton, and a German biologist Theodor Boveri in 1902 put forth few hypotheses independently. अलग अलग जगहों पे उन्होंने काम किया. एक ने ग्रास हॉपर्स पे और दूसरे ने सी अर्चन्स पे. तो अलग अलग इंडिपेंडेंटली उन्होंने हाइपोथेसिस दिए. Certain, while working on grasshoppers, found that chromosomes occur in pairs which separate from one another during meiosis. अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उसने अज्यूम किया कि ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दे एक्चुअली कंप्राइज ऑफ वन मैटरनल एंड वन पैटर्नल क्रोमोसोम and their separation during meiosis actually explains Mendel's laws of inheritance. तो जैसे मैंने पहले ही कहा, थियोडोर बोवेरी उसी समय काम कर रहा था सी अर्चन्स के ऊपर, एंड ही फाउंड that for a proper embryonic development, all the chromosomal pairs must be present in embryo. Now, both these hypotheses were later combined to give us a single theory, which is known as Sutton-Boveri theory of inheritance or the chromosomal theory of inheritance. तो ये theory है क्या? इसका statement थोड़ा सा देख लें. It states कि Mendelian factors or genes are located at specific loci on chromosomes, and it is the chromosomes which segregate and assort independently during meiosis and gamete formation and recombine at the time of fertilization in the zygote. So such a pattern of behavior of chromosomes explains how and why the genes are inherited, and hence the Mendelian laws are explained. देखिए, by the emergence of with the emergence of this theory, जो दो ब्रांचेस थी साइटोलॉजी और जेनेटिक्स, ये कन्वर्ज होके एक कॉमन ब्रांच बन गई जिसको हम साइटोजेनेटिक्स कहते हैं. Now, the theory of inheritance and this chromosomal theory of inheritance and the laws of inheritance can be explained by taking the parallelism between the behavior of chromosomes and Mendelian factors, यानी कि genes. एक छोटा सा कंपैरेटिव अकाउंट ले लेते हैं दोनों के बिहेवियर का, क्रोमोसोम के बिहेवियर का भी और जीन्स के बिहेवियर का भी. देखिए, क्रोमोसोम्स अकर इन होमोलोगस पेयर्स इन डिप्लॉइड सेल्स, तो हेरिडिटरी फैक्टर्स आल्सो एग्जिस्ट इन पेयर्स एज पर द लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स. दूसरा, the paired homologous chromosomes separate in meiosis so that each gamete receives only one chromosome of each pair. Law of segregation भी यही कहता है कि paired factors segregate at the time of gamete formation so that each gamete receives only one factor of each pair. अच्छा, अब हम ये देखें, the chromosomes of various homologous pairs during gamete formation assort independently of every other pair. तो मेंडल ने भी तो यही पोस्टुलेट किया था
कि factors of various homologous pairs during segregation assert independently of every other pair, जिसको कि हम द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कहते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें कि अगर हमारे पास एक डाइहाइब्रिड कंडीशन है, सपोज कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, so at the time of gamete formation what will happen, that capital Y can assert with capital R or it can assert with small r. Similarly, small y can assert with capital R or small y can assert with small r. So ये चार के चार जो कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बन रहे हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इक्वल है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। सेम इज द केस इन क्रोमोसोम्स आल्सो। एक क्रोमोसोमल पेयर जो है उसमें एक मैटरनल है और एक पैटर्नल है, और इस तरह के जितने भी पेयर्स हैं तो उनकी जब आगे क्रोमोसोम्स की असार्टमेंट होगी तो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। कुछ मैटरनल और कुछ पैटर्नल जुड़ के गैमीट के अंदर जा सकते हैं, और ये असार्टमेंट जो है दैट इज इंडिपेंडेंट। सो ये भी बिहेवियर एक जो है बिल्कुल पैरेलली चल रहा है बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड the Mendelian factors. Now, the paired condition of the chromosome is restored on fertilization so that the zygote receives one set each of maternal and paternal chromosomes. So, gamete formation के बाद फिर से दोबारा diploid condition restore हो जाती है after fertilization, जहाँ पे फिर से जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स में आ जाते हैं। तो मेंडल ने भी तो यही पास्टुलेट किया था कि फैक्टर्स रिस्टोर पेयर्ड फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अच्छा, तो क्रोमोसोम्स जो है ना, दे रिटेन देयर स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंडिविजुअल वेदर दे आर नोटिसेबल और नॉट। सो मेंडल हेल्ड दैट कैरेक्टर्स आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो मानो हाइब्रिड क्रॉस को, उसमें हमने ये देखा था कि F1 जनरेशन में रिसेसिव कैरेक्टर बिल्कुल गुम हो चुका है, लेकिन वो किसी भी कैपेसिटी में वो लॉस्ट नहीं है, क्योंकि F2 जनरेशन में जाके फिर से 1/4 जो है वो रिसेसिव इंडिविजुअल्स रिसेसिव फिनोटाइप शो करते हैं। इंडिविजुअल जो हैं वो रिसेसिव फिनोटाइप शो करते हैं। इसका मतलब है वो रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो कहीं पे लूज नहीं हुआ है। दिस इज हाउ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड that genes are present on chromosomes and also that they are the units of heredity. So in this manner the theory supported Mendel's work and was useful in proving the laws of genetics. तो इतना कुछ डिस्कस करने के बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं कि इस पूरी थ्योरी के सेलेंट फीचर्स क्या हैं। देखिए, all the hereditary characters must be carried through the sperm and ovum from one generation to the next as they form the bridge between parents and offspring. ध्यान देने वाली बात है, दो जनरेशन के बीच में ब्रिज का काम कौन कर रहा है? गैमीट्स। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच जो ब्रिज का काम कर रहा है वो क्या है? स्पर्म और ओवम, यानी गैमीट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। सो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में अगर जा रहे हैं तो किसके थ्रू जा रहे हैं? थ्रू स्पर्म और ओवम जा रहे हैं। अब दूसरा, द स्पर्म प्रोवाइड्स ओनली इट्स न्यूक्लियस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन बट कंट्रीब्यूट्स एज मच टू हेरिडिटी एज डज द ओवम। The hereditary characters must be carried through nuclear material comprising of chromosomes. अगर आप फर्टिलाइजेशन को रिकॉल करो तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ओवम जो है वो अपना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों प्रोवाइड कर रहा है, बट अगर हम स्पर्म की बात करें तो इन केस ऑफ स्पर्म न्यूक्लियर पार्ट जो है या न्यूक्लियस जो है वो ही फर्टिलाइजेशन में हिस्सा ले रहा है। इसका मतलब है जितने भी कैरेक्टर्स मेल पेरेंट की तरफ से ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं वो थ्रू न्यूक्लियस आ रहे हैं, और न्यूक्लियस जो है दैट कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम्स।
अच्छा, like heredity traits, the chromosomes behave as units and retain their number, structure, and individuality from generation to generation, which neither get mixed up nor lost. सो मतलब ये चाहे हेरिडिटी ट्रेट्स की बात करें हम या क्रोमोसोम्स की बात करें, ये जो हैं ये दोनों बिहेव कर रहे हैं एज यूनिट्स, और वो अपनी आइडेंटिटी को जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है ना वो मेंटेन करते हैं, ना वो मिक्सअप हो जाते हैं वो, ना वो लूज होते हैं, वो बिल्कुल उनमें कोई भी ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग वगैरह आप ये नहीं कह सकते हो जैसे कोई दो अलग अलग किस्म के कलर्स डाल दिए तो उसकी नेचर चेंज होगी, ऐसा नहीं होगा, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं। तो बोथ क्रोमोसोम्स एंड मेंडेलियन फैक्टर्स जो हैं दे एग्जिस्ट इन पेयर्स इन सोमेटिक और डिप्लॉइड सेल्स। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो डिप्लॉइड सेल है उसमें पेयर्ड कंडीशन में होंगे क्रोमोसोम्स, एंड हेंस पेयर्ड कंडीशंस में ही होंगी जीन्स भी, या जिसको हम फैक्टर्स मेंडेलियन फैक्टर्स कह रहे हैं। और गैमीट्स जो हैं दे कंटेन ओनली वन ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ द पेयर and hence only one of the two alleles of the character. अब क्या है कि जब गैमीट बन गया, गैमीट के अंदर हैप्लॉइड कंडीशन आ गई है, यानी कि हर कैरेक्टर का एक सिंगल एलील एग्जिस्ट करता है और हर क्रोमोसोमल पेयर में से एक सिंगल क्रोमोसोम एग्जिस्ट कर रहा है। बट बोथ क्रोमोसोम्स एंड एलील्स जो हैं वो जिस वक्त गैमीट बन रहा होता है तो वो उनकी असॉर्टमेंट जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट ही होती है, और फिर उनमें जो डिप्लॉइड कंडीशन उनमें आएगी वो तभी रिस्टोर होगी जब फर्टिलाइजेशन होगी। सो द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है दैट रिस्टोर्स द पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ द क्रोमोसोम्स एंड द मेंडेलियन फैक्टर्स। स्टूडेंट्स, that's all about the chromosomal theory of inheritance. Hope you enjoyed this session. फॉर क्वेरीज एंड डाउट्स आप मुझे मेल कर सकते हो डायरेक्टली मेरी मेल आईडी पे जो अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, एंड वी शैल नाउ मीट इन पार्ट 7 ऑफ द सीरीज ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. टिल देन, stay safe, stay blessed.